Okay, so we'll have a quick revision for yesterday's class. Confirm, how do you read? Radio 5. Okay. So yesterday, I think we were saying the RVSM, right? Last topic was RVSM and minimum equipment list, RVSM equipment list. We saw to fly in RVSM, we require generally four most important instruments. They are the dual independent altitude measurement system called as two pressure altimeters and one autopilot system for like altitude hold mode, and third one was the altitude alerting device that should alert the plus minus 300 feet, and fourth one was the transponder, also called as secondary surveillance radar. It is also called as a transponders, right? The type of transponders which are generally used in aviation are, there are multiple types of transponders, right? I will be telling you, I will be giving the notes C, D, E, right, and S. But in aviation, we generally make use of A, C, and S. These are the most commonly known and most frequently used is the C and S. Latest technology they use C, and older ones they used to have C. Right? I will be telling you the specification for each and every. Don't worry about that thing. And today we are going to see is the today we'll start the new topic and we'll have a new slide from here. New background insert clear. From where we will get to the new. Okay, we'll have go to back here. New. So I will set this to new and color to white. Pixels. White background. Okay. So everything is all set. Today we are going to start is the visual meteorological condition. Right. This is also one rule of airspace, generally called as a visual meteorological condition. VMC. There were two types of rule, right? In our previous classes, we saw one was IMC and VMC. So we are going to see these rules individually. First one which we are going to see is the VMC. So what do you understand by VMC first of all? So VMC, it is a rule which defines the cloud, means the visibility, means the distance you are able to see naked eyes with the naked eyes. You should not have any restrictions in seeing that distance. And second one is the distance from the clouds horizontally and vertically. Okay, so we'll write down parallelly. First we are covering the VMC. Give the heading VMC, visual meteorological condition. And this one, so we'll write down the definition first. So it is a weather condition. It is a weather condition. It is a weather condition required for flight to be conducted under VFR. It is a visual meteorological condition required for the flight to be conducted in VFR. Okay, this is the actual definition of this VMC. Now, what are the conditions? So, in second point, we will write down are defined by the specific minimum standards like VMC are defined by specific minimum standards for three parameters. Right? On three parameters, we generally see the airspace. Number one is the flight visibility. It's a spelling mistake.
flight visibility. Second one is the distance from clouds. That also we'll write down it as horizontal distance. And third one, distance from clouds vertical. Right? These are the three parameters which generally we see in VMC. Right? And also the parameter should be minimum, कम से कम, इतना कम से कम विजिबिलिटी, इतना कम से कम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली होना जरूरी है. ठीक है. अगर जो मैं तुम्हें बताऊंगा ये कंडीशंस अगर नहीं मीट हो रही हैं, right, if these conditions are not met, so definitely we have to change to IMC. ठीक है. तो इसके नीचे पॉइंट लिख लो, नोट लिखो, राइट डाउन एज नोट. नोट में हम लिखेंगे if the weather condition are less than the specific VMC minimums, less than the specific VMC minimums, the condition are known as IMC. ठीक है. हम लोग जो अभी देखेंगे कि VMC में इतना डिस्टेंस होना चाहिए, अगर उससे कम है, राइट, तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, IMC कंडीशन हो जाता है. ठीक है. एंड दी फ्लाइट मस्ट be conducted under IFR, that is instrument flight rule. ठीक है. सीधी सी बात है, अगर ये कंडीशन नहीं मीट हो रही है, देन द एयरक्राफ्ट मस्ट बी फ्लाइड यूजिंग IFR. ठीक है. अब ये VMC कंडीशन होता क्या है, इसमें क्या क्या कंडीशन है, तो पहले मैं एक टेबल बनवाता हूँ तुम्हारे. लेट्स मेक वन टेबल. ठीक है. और ये जो टेबल बनाऊंगा दैट इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड बाय दी इकाओ. इकाओ के डॉक्यूमेंट्स में ये चीजें मेंशन्ड है. तो हम इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम पूरा समराइज कर देंगे इस VMC और IMC को. ठीक है. ऐसा एक टेबल बनाओ और उसमें फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे, आई एम मेकिंग वेरी सिंपल फॉर यू गाइस. ठीक है. बहुत इजी बना दे रहा हूँ कॉलम के फॉर्म में, ताकि, क्योंकि बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखा होगा तो फिर बाद में क्या है कि चीजें समझना बहुत मुश्किल हो जाती है. ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे अल्टीट्यूड बैंड्स. ठीक है. सेकंड कॉलम में लिखेंगे एयर स्पेस क्लास. थर्ड कॉलम में लिखेंगे फ्लाइट विजिबिलिटी. थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे फ्लाइट विजिबिलिटी. और फोर्थ कॉलम जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम क्लाउड्स. और फिफ्थ कॉलम में डालेंगे वर्टिकल डिस्टेंस क्लाउड्स, फ्रॉम क्लाउड्स. ठीक है. ऐसा 5 कॉलम बना लो फटाक से, जिसमें हम लोग VMC और IMC को पूरा क्लासिफाई कर देंगे.
अल्टीट्यूड बैंड्स, एयर स्पेस, क्लास, फिर फ्लाइट विजिबिलिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम क्लाउड्स और वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम क्लाउड्स। इस तरीके का हम बना लेंगे। सबसे पहला लिखेंगे अल्टीट्यूड बैंड में एट एंड above 10,000 feet AMSL, that is active mean sea level। ठीक है, हम एक्टिव मीन सी लेवल का हाइट लेंगे और इसमें एक एयर स्पेस क्लासिफिकेशन चला जाएगा, तो बी सी डी ई एफ एंड जी। ये जो रूल बताऊंगा ये इन सारे क्लासेस ऑफ एयर स्पेस के लिए। मैं नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा एयर स्पेस होगा, तो मैं और डिटेल में बताऊंगा एयर स्पेस क्या है। फिर उसके बाद है फ्लाइट विजिबिलिटी, तो कितना होना चाहिए, 8 किलोमीटर। ठीक है, इसको हम 5 SM भी बोलेंगे, 5 SM, राइट। क्लाउड विजिबिलिटी इज 8 किलोमीटर्स। फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 1500 मीटर्स। ये अप्रोक्स कितना हो जाता है, 1 SM। ये SM है, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे SM ब्रैकेट में, 1 SM। फिर वर्टिकल डिस्टेंस में हम क्या लिखेंगे, 300 मीटर्स, 300 मीटर्स, और दिस इज अप्रोक्स 1000 फीट। नेक्स्ट में लिखेंगे बिलो 10,000 below 10,000 feet active mean sea level and above 3,000 feet active mean sea level from active mean sea level। ठीक है, below and above। so इस बैंड में this is applicable for same classes B C D E F G। ठीक है, ये रूल सारे क्लासेस में एप्लीकेबल होंगे। और यहाँ पे कितना होना चाहिए, 5 किलोमीटर। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 SM। इट इज 5 किलोमीटर। फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कितना आ जाएगा, इट इज 1500 मीटर। यहाँ पे भी अप्रोक्स सेम 1 SM, अप्रोक्स 1 SM। और यहाँ पे सेम चीज है, यहाँ पे वही आ जाएगा जो ऊपर है, 300 मीटर एंड 1000 फीट। ठीक है, हम वही कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे थर्ड पॉइंट में बिलो 3000 फीट, तो एट और बिलो 3000 फीट एक्टिव मीन सी लेवल, अबव मीन सी लेवल सॉरी। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तो बी सी डी और ई, इन टाइप के एयर स्पेस के लिए एप्लीकेबल है। कितना, सेम 5 किलोमीटर, 3 SM। इसमें सेम है 1500 मीटर और अप्रोक्स सेम 1 SM, 1 SM और 300 मीटर्स, 1000 फीट। फिर फोर्थ कॉलम में हम लिखेंगे एट और बिलो 3000 फीट AMSL
बट यहाँ पे क्लासेस ऑफ एयर स्पेस एन जी, राइट, एफ एन जी आर जनरली, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस। सर एक मिनट, जो आपने भी ऊपर लिखा है वो भी तो एट और बिलो है। हाँ, बट एयर स्पेस अलग है ना, ध्यान से देखो। ASML ASML हम्म 3000। सी डी ई है ऊपर वाले में, और नीचे वाले में एफ और जी। ठीक है। ठीक। हम्म और यहाँ पे भी 5 किलोमीटर की रेंज हमें विजिबिलिटी चाहिए, 3 SM की। और यहाँ पे क्लियर ऑफ क्लाउड्स एंड इन साइड ऑफ द सरफेस, यहाँ पे कोई ऐसा रेंज नहीं दिया हुआ है, बस क्लियर होना चाहिए, क्लियर ऑफ क्लाउड्स एंड इन साइड ऑफ द सरफेस। इन साइड ऑफ द सरफेस मतलब सरफेस दिखना चाहिए, ठीक है, जमीन दिखनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे भी क्लियर ऑफ क्लाउड्स एंड inside of the surface. These are the rules. ये सीधा सा रूल है। अगर ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है तो यू कैन फ्लाई इन VMC, और एल्स यू हैव टू डायरेक्टली चेंज इन IMC। अब इसको मैं पिक्टोरिकली भी एक इस तरीके से इमेज बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एयरक्राफ्ट, कोई भी एक एयरक्राफ्ट हम ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एक एयरक्राफ्ट बनाता हूँ, छोटा सा, अच्छा सा, अच्छा बनना चाहिए, देखो कैसा बनता है। पता नहीं कैसा बना है। हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर और वर्टिकल स्टेबलाइजर, और ये कॉकपिट हमारा, यहाँ पे छोटे छोटे विंडोज और एक डोर। मस्त बन गया ना लेयर जेट। और इसका इंजन कहाँ लगाएंगे हम? इंजन यहाँ पे लगा देते हैं। ये इसका इंजन है, फ्यूजलाज माउंटेड इंजन बोथ साइड। सो ये एक एयरक्राफ्ट है। अगर इस एयरक्राफ्ट को VMC में फ्लाई करना है तो सीधी सी बात है, देयर आर टू कंडीशंस, देयर आर टू कंडीशंस। हम इस कंडीशन को, अगर जो इस हाइट को हम 10,000 फीट मान लेते हैं, इफ दिस इज अ 10,000 फीट, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, या फिर ब्रैकेट में हम ऐसा लिख देंगे फ्लाइट लेवल 100। ठीक है, फ्लाइट लेवल 100 के ऊपर, फ्लाइट लेवल 100 के ऊपर विजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए और नीचे कितनी होनी चाहिए? सो इस तरीके से हम बना लेंगे, एक फिगर बना लेंगे जिससे तुम लोग को इजी रहे। तो विजिबिलिटी होना चाहिए 8 किलोमीटर की, और इसके नीचे विजिबिलिटी कितना होना चाहिए? 5 किलोमीटर की। ठीक है, और क्लाउड हाइट, यहाँ पे हम एक क्लाउड बना लेंगे, ठीक है, और पीछे एक क्लाउड बना लेंगे। सो क्लाउड हाइट वर्टिकली कितना होना चाहिए? सप्रेशन 1000 फीट, और हॉरिजॉन्टली कितना होना चाहिए? 1500 फीट। ठीक है, ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। अगर इनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, जैसे इफ यू आर अबाउ दिस फ्लाइट लेवल 100 और तुम्हारा विजिबिलिटी अगर 8 किलोमीटर से कम है, तो यू कैन नॉट फ्लाई इन VMC, तुम VMC में फ्लाई नहीं कर सकते। अगर तुम इसके नीचे हो, 10,000 के नीचे हो, विजिबिलिटी 5 किलोमीटर से कम है, तब भी फ्लाई नहीं कर सकते। क्लाउड, अगल बगल में क्लाउड तो दोनों में सेम ही है, इधर यू आर अबाउ 10,000 और बिलो 10,000, तो क्लाउड का जो सेपरेशन है, वर्टिकल सेपरेशन 1000 ही होना चाहिए, और हॉरिजॉन्टल सेपरेशन शुड बी 1500। ठीक है, ये होना बहुत जरूरी है। 1500 मीटर है आई थिंक सो। हाँ, दिस इज नॉट फीट, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे वो लोग ने मीटर में दिया हुआ है।
1500 मीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे फीट में दिया हुआ है, दोनों अलग अलग यूनिट दिया हुआ है। और ये जो मैंने तुम्हें लिखा है डायरेक्टली इकाऊ में दिया हुआ है, राइट, इकाऊ के डॉक्यूमेंट्स में दिया हुआ है, तो वहां पे यही यूनिट यूज किया है वो लोग ने। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, क्वेश्चन भी इसी तरीके से आएंगे। और यहाँ पे किलोमीटर में दिया है, विजिबिलिटी किलोमीटर में दिया है, तो ध्यान देना इस सब चीजें। ठीक है, अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 1 2, देयर आर 3 कंडीशंस, राइट, 1 2 और 3, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दैट मीन्स तुम वीएमसी में नहीं अप्लाई कर सकते, तब तुम्हें ऑटोमेटिकली आईएमसी में शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, और एक नोट लिखेंगे इसमें, इसके नीचे एक नोट लिखेंगे, विल राइट डाउन द नोट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, क्योंकि यहाँ पे देखना जितने भी एयर स्पेस है यहाँ पे कहीं पे भी ए का मेंशन नहीं है, राइट, हमने बी से शुरू किया है, तो ए में नोट लिखेंगे फॉर ए एयर स्पेस वीएफआर फ्लाइट्स आर generally prohibited in class A airspace globally। ठीक है, और उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे, एस इट इज रिजर्व्ड फॉर IFR traffic where ATC provides all suppression। ये DGCA क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्लास ए में कभी भी VFR फ्लाई नहीं किया जाता है, बाकी सारे में कर सकते हो, बट यू गाइस कैन नॉट फ्लाई इन क्लास ए में कभी भी हमें VFR फ्लाइंग नहीं करना है। ठीक है, अब एक और कंडीशन लिखो, एक और कंडीशन है इसके बाद। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल VFR, जिसे बोलते हैं हम स्पेशल VFR। मतलब एक ऐसा सिचुएशन है कि तुम्हारा VFR सिचुएशन मैंडेटेड नहीं है, मतलब ये जो VMC कंडीशन है ये नहीं है। ठीक है, हो सकता है विजिबिलिटी 8 किलोमीटर नहीं है, 1000 फीट का सपरेशन, 1500 मीटर का सपरेशन नहीं है, इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं मेट हो रहा था तो क्या हमने क्या देखा था कि VMC नहीं है तो हमें डायरेक्टली IMC में करना है, स्विच करना है, राइट, V से I में जाना है। ठीक है, बट अगर तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, या फिर ड्यू टू एनी रीजन, कुछ भी हो सकता है कि तुम IMC में स्विच नहीं कर पा रहे हो, तो हम क्या करेंगे, हम ATC से परमिशन लेंगे, स्पेशल परमिशन, दैट इज जनरली कॉल्ड एज ए स्पेशल VFR, SVFR। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है और ये इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाएगा, अगर जो कहीं पे जाओगे इंटरव्यू वगैरह में, तो मतलब इस लेवल के इंटरव्यू, ATC के इंटरव्यू में, राइट, जैसे WBC वगैरह इंटरव्यू ले रहा है, तो उस कंडीशन में दे विल बी आस्किंग यू व्हाट इज स्पेशल VFR, राइट, इसको फुल फॉर्म लिख लेंगे, स्पेशल विजुअल फ्लाइट रूल। राइट, विजुअल फ्लाइट रूल में ये स्पेशल कंडीशन है जिसमें तुम्हें अलाउ किया जाता है कि तुम फ्लाई करो फिर भी। ठीक है, तो लेट्स राइट डाउन द पॉइंट। द कंडीशन फॉर द पायलट टू रिक्वेस्ट, it is the condition for the pilot to request and for ATC
and for ATC to grant and special VFR clearance and ATC to grant special VFR clearance are very strict, राइट जो कंडीशन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, कॉमा डिजाइन टू मेंटेन a minimum level of safety, these conditions include राइट। तो अब ये सारे कंडीशंस हम लोग लिखेंगे, देयर आर मल्टीपल ऑलमोस्ट 8 कंडीशंस, राइट, टोटल 8 कंडीशंस, जिन कंडीशंस में हमें स्पेशल VFR मतलब ATC प्रोवाइड करेगी। तो सबसे पहला कंडीशन है पायलट रिक्वेस्ट, हेडिंग डालेंगे पायलट रिक्वेस्ट। सबसे पहला कंडीशन है पायलट रिक्वेस्ट, उसमें हम लिखेंगे the pilot must specifically specifically request an special VFR clearance from ATC। पहला कंडीशन है कि पायलट जनरली तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा है ATC से कि भाई हमें कंडीशन दे दो, हमें परमिशन दे दो, तो ATC अप्रूव कर देता है। अगर उसे लगता है कि यस इट कैन बी अप्रूव तो वो कर देगा। दूसरा, कंट्रोल जोन एयर स्पेस, उसमें लिखेंगे the operation must be within the lateral boundaries of the control zone। इसका कहने का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल तुम हमारे एयर स्पेस में ही रहो, जैसे अहमदाबाद है या फिर कोचीन हो गया, तो कोचीन का जितना एरिया है, फॉर एग्जांपल उस एयरपोर्ट से ATC से लेके वो ATC कितना ऑलमोस्ट मान लो 10 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर के एरिया कवर करता है, तो उस एरिया में अगर तुम फ्लाई कर रहे हो, उसके बाहर नहीं जाओगे, राइट, तो दे विल गिव यू द परमिशन, राइट। जैसे हर कंट्रोल जोन का अपना खुद का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंट्रोल होता है, मतलब वर्टिकली 100 किलोमीटर मान लो या फिर 20 किलोमीटर और हॉरिजॉन्टली मान लो 10 किलोमीटर, इतने एरिया में कोई भी एयरक्राफ्ट आता है तो उसको ये लोग हैंडल करेंगे, ऐसा होता है, राइट। तो जनरली अगर जो इस कंट्रोल जोन में हो, राइट, तो दे विल प्रोवाइड यू, मतलब वो बोल देगा कि तुम हमारे कंट्रोल जोन में ही फ्लाई कर रहे हो, तो दे विल गिव ए स्पेशल VFR कंडीशन, यस ठीक है, तो हमारे नजर में हो, उड़ो, राइट, यू गाइस आर अप्रूव्ड फॉर। अब इसमें हम ब्रैकेट में लिखेंगे कंट्रोल जोन के आगे क्लास D, C, D और E एयर स्पेस, राइट। इन एयर स्पेस में जनरली क्या होता है कि मिल जाता है VFR परमिशन, क्लास C, D एंड E एयर स्पेस। नेक्स्ट उसी में हम कंटिन्यू करेंगे, SVFR is generally not granted in class B और आउटसाइड कंट्रोल जोन, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्लास B एयर स्पेस क्या होता है, इसके स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, तभी लिख लो। क्लास B एयर स्पेस में क्या होता है कि स्पेशल VFR कंडीशन नहीं मिलता है और
आउटसाइड कंट्रोल जोन में हमें नहीं मिलेगा, क्लास बी और आउटसाइड कंट्रोल जोन। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट है बेसिक विजिबिलिटी मिनिमम। ठीक है, ये हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे बेसिक विजिबिलिटी मिनिमम। सो इसके अंदर लिखेंगे द पायलट मस्ट बी एबल टू मेंटेन, the pilot must be able to maintain flight visibility of at least 1500 मीटर। अब हमने क्या देखा था कि 1500 मीटर का मिनिमम तो होना ही चाहिए वीएमसी में। अगर पायलट बोलता है कि नहीं हम इतना सप्रेशन रख लेंगे, मेंटेन करेंगे, तो दे कैन गिव यू द परमिशन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखो ग्राउंड विजिबिलिटी मिनिमम। विजिबिलिटी मिनिमम इसके अंदर हम लिखेंगे if tower if the tower reports official ground visibility it must be at least 1500 मीटर। ठीक है, ग्राउंड विजिबिलिटी जमीन पे, नॉट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एयर स्पेस। ठीक है, ग्राउंड पे इतना कम से कम विजिबिलिटी रहना चाहिए 1500 मीटर का, तब एटीसी अप्रूव करेगा। ठीक है, ये एक कंडीशन है। फिफ्थ डालेंगे, फिफ्थ पॉइंट में क्लियर ऑफ क्लाउड्स। क्लियर ऑफ क्लाउड्स कितना क्लियरेंस होना चाहिए, तो लिखेंगे the aircraft must maintain the aircraft must remain the aircraft must remain continuously clear of clouds, continuously clear of clouds, continuously clear of clouds throughout the special VFR operation, SVFR operation। राइट, अगर पायलट बोलता है कि यस हमारा एयरक्राफ्ट क्लियर है, राइट, कितना क्लियरेंस हो कुछ यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है, बस क्लियर है, राइट, इट इज क्लियर ऑफ ऑल दी क्लाउड्स पूरे ऑपरेशन के दौरान, तो हमें दे दिया जाएगा स्पेशल VFR थ्रू आउट दी SVFR ऑपरेशन। ठीक है, सिक्स पॉइंट है साइट ऑफ द सरफेस, इनसाइड ऑफ द सरफेस। इसमें लिखेंगे एयरक्राफ्ट मस्ट रिमेन inside of सरफेस, ब्रैकेट में लिखेंगे ग्राउंड और वाटर। मतलब हमें जमीन के आसपास ही रहना है, ऐसे नहीं कि हम बहुत ज्यादा हाइट पे चले जा रहे हैं। ठीक है, वी शुड बी इनसाइड ऑफ दी
सरफेस, कोई भी सरफेस के पास ही रहना है, तभी हमें स्पेशल VFR कंडीशन मिले। ठीक है। 7th, स्पीड रिस्ट्रिक्शन। राइट, स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी आ जाता है। VFR में फ्लाई कर रहे हो तो ATC बोल देगा कि यू शुड नॉट इंक्रीज योर स्पीड। ठीक है, तो कितना लिखो, इन मैनी जुरिडिक्शंस, मैनी जुरिडिक्शन, JURIDICTIONS, in many jurisdictions a speed limit is imposed, स्पीड लिमिट इज इम्पोज्ड। ये डिपेंड करता है ATC के ऊपर। जैसे रोड पे होता है ना कि 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर हर रोड का लिमिटेशन होता है, वैसे उस एयर स्पेस में भी ATC डिफाइन कर देगी कि इसमें इससे ज्यादा स्पीड पे हमें नहीं जाना है। अगर ये स्पीड तुम फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें मिल जाएगा। राइट, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे फॉर एग्जाम्पल 140 नॉट्स IAS। राइट, IAS क्या है? इंडिकेटेड एयर स्पीड। देखेंगे टू एंश्योर the pilot has adequate, ADEQUATE, adequate means sufficient time to see and avoid obstacles and other traffic। ठीक है, इसलिए स्पीड लिमिट डाल देता है कि बहुत तेजी से जाओगे तो हो सकता है तुम्हें दिखे ना, तो ऑब्स्टिकल क्लियरेंस के लिए वो डलेगा कि भाई इतना स्पीड पे जाना, तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा। इससे एक्सीडेंट के चांसेस घट जाते हैं। और लास्ट है डे लाइट ओनली। ठीक है, स्पेशल VFR हमें जनरली डे लाइट में ही मिलेगा, नाइट में नहीं मिलता है। तो इसके ऊपर लिखेंगे हम, विल राइट डाउन द पैराग्राफ। SVFR is typically restricted to daytime operation, restricted to daytime operation unless the pilot and aircraft are fully equipped and qualified for IFR। ठीक है, नाइट में अगर तुम्हें स्पेशल परमिशन चाहिए तो पायलट के पास भी ऐसा अप्रूवल होना चाहिए, और उस एयरक्राफ्ट पे IFR होना जरूरी है, मतलब बैकअप के लिए। मान लो जरूरत पड़ गया तो IFR कंडीशन यूज किया जा सके, तब हम जनरली स्पेशल VFR नाइट में देंगे, और एल्स ये रिस्ट्रिक्टेड है डे के लिए, सिर्फ डे में मिलेगा हमें स्पेशल VFR। ठीक है, इसके अलावा रात में नहीं मिलेगा। अब ये क्यों जरूरी हो जाता है, कभी कभी स्पेशल VFR क्यों जरूरी हो जाता है? तो जनरली ATC स्पेशल VFR इसलिए देता है, देयर आर 3 कंडीशंस टू कंट्रोल ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि इस ट्रैफिक को अगर जो VFR से वो लोग ने फटाफट हटा दिया तो वहां से हट जाएगा। राइट, भले वो VFR कंडीशन नहीं है, VMC कंडीशन नहीं है, बट स्पेशल परमिशन दे के अगर जो उसको वहां से रेगुलेट कर दिया जाए तो ट्रैफिक कम हो जाएगा। राइट, इसी वजह से तो ATC इसलिए इस कंडीशन की वजह से देता है। राइट, दूसरा होता है मार्जिनल वेदर।
ठीक है। वेदर बहुत ज्यादा खराब नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत खराब है तो चल सकता है, इसी वजह से इस कंडीशन में भी देता है। और तीसरा है इमरजेंसी और लोकल ऑपरेशन। इमरजेंसी और लोकल ऑपरेशन, राइट। इन सब वजह से एटीसी क्या करता है, स्पेशल वीएफआर अलाउ करता है। ये थे डिफरेंट कंडीशंस अंडर विच द स्पेशल वीएफआर कैन बी अप्रूव्ड, ठीक है। और ये है एटीसी के मोटो, राइट। एटीसी का पर्पस क्या है कि वीएफआर अलाउ करना, तो ट्रैफिक कंट्रोल करना, मार्जिनल वेदर रहेगा तो कर देना, और इमरजेंसी और लोकल ऑपरेशन करने के लिए, इमरजेंसी में और लोकल ऑपरेशन को अलाउ करने के लिए जनरली ये ऐसे करते हैं स्पेशल वीएफआर। अब स्पेशल वीएफआर मतलब जैसे कि क्या बोल दिया यहाँ पे कि हमने क्या देखा था कि वीएफआर कंडीशन में हमारे पास ये होना चाहिए, इनमें से कोई भी मेंटेन नहीं हो रहा है, राइट, कोई भी एक भी मेंटेन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर भी अप्रूव कर देंगे। ये तीनों हमने क्या देखा था, 3 कंडीशन मैंडेट होना चाहिए, ये तीनों में से एक भी मैंडेट नहीं हो रहा है, देन ऑल्सो स्पेशल वीएफआर कैन बी गिवन, ठीक है, अगर उसके पास वो सारे कंडीशंस है तो। ओके, सो स्पेशल वीएफआर में इतना ही। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है, देखो वीएमसी, ये सारे कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई हो रहे तो ऑटोमेटिकली किस में आ जाते हैं, वीएमसी में, ठीक है। इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन इट इज ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इन आईएमसी, ठीक है। आईएमसी में जैसे फॉग वगैरह रहेगा, क्लाउड रहेगा, हैवी रेन रहेगा, प्रेसिपिटेशन रहेगा, ऐसा कुछ हो रहा है तो भी हमें आईएमसी में जाएंगे। अगर हमारे पास जीपीएस वगैरह है, राइट, यू आर हैविंग अ जीपीएस, वी आर आईएलएस, ठीक है, तो भी हम आईएमसी कंडीशन में फ्लाई करेंगे, ठीक है। और आईएमसी कंडीशन में फ्लाई, is it a call? Give me 1 second, guys. Salman will continue tomorrow. ओके सर।